ओम शांति। आज के बाबा 12/9/2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष बोलेছেন যে যারা বাবার জ্ঞানে চলছে অথচ যারা নিজেকে বিকার থেকে মুক্ত করতে পারেনি আর তারা বাবার জ্ঞান শুনতেও আসে, মুরলি শুনতেও আসে, কিন্তু তাদের কাছে এই জ্ঞান হজম হবে না এবং তারা কখনো জোর গলায় এটা বলতে পারবে না যে তোমরা বিকারকে জয় করো। তারপরে আজকে বাবা বলছেন যে সমস্ত বুড়ি মাতাদের মধ্যে খুব ভালো সংগঠন হওয়া দরকার এবং তাদেরকে তোমরা ভালো করে তৈরি করো যাতে তারা যেখানে সেখানে বাবা যখন ডাকবে সেবা করার জন্যে তো তারা একদম লগনে মগন হয়ে ছুটে ছুটে তারা গিয়ে জ্ঞান শোনাতে পারে। তো সেই বুড়ি বুড়ি মাতারা যদি এত উঁচু জ্ঞান শোনায় তাহলে সবাই দেখে খুব বাহ বাহ করবে। তারপরে বাবা আজকে কুমারীদেরকেও বলেছেন যে কুমারীরা তো বাবার সেবায় লেগে বাবার নাম রোশন করতে পারে। বাবা বলেছেন যে লৌকিক পড়াইয়ের জন্যে কত মাথা মারছে, কিন্তু এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়লে তুমি 21 জন্মের রাজ্যপদ পাবে। আর লৌকিক পড়াশোনা করে যে ডিগ্রি তোমরা পাবে সেটা হঠাৎ যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েও যায় তাহলে তো নতুন করে আবার সব কিছু পড়তে হবে। এই ডিগ্রি তো আবার পরবর্তী জন্মে কাজে লাগবে না, কিন্তু তোমাদের এই পড়া তো জন্ম জন্মান্তর তোমাদের সঙ্গে যাবে। তারপরে বাবা বলছেন যে যতটা সময় পারো তোমরা যোগে বসো আর কখনো বাবার সামনা করতে যেও না, বাবার মোকাবিলা করতে যেও না বা কোনো ব্যাপারে রুষ্ট হও না, নিজেদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে রুষ্ট হও না, সবাইকে সম্মান দিয়ে চলো। তাই আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি विस्तारितভাবে सुनब। मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। बाबा बोलছেন যে সব সময় এটা মনে রাখো যে বাবার শ্রীমত অনুসার তোমরা সত্যযুগী রাজধানী স্থাপন করছো, তাহলে अपार खुशी থাকবে। আজকের প্রশ্ন, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है। बाबा বলছেন যে জ্ঞানের ভোজন কোন বাচ্চাদের ডাইজেস্ট হয় না, হজম হয় না। তো বাবা উত্তরে বলছেন जो भूले करके छी छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। বলছেন যারা ভুল করে বা বিকারে চলে যায়, ছি ছি পতিত হয়ে যায়, তা সত্ত্বেও তারা ক্লাসে এসে বসছে, তো বাবা বলছে তাদেরকে জ্ঞান হজম হবে না। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाच का महाशत्रु है, उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। তারা কখনো অন্যকে বলতে পারবে না যে ভগবান ওয়াচ কাম মহাশত্রু, তাদের দিল সবসময় ভিতরে ভিতরে গ্লানিতে ভরে যাবে। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं, বলছে তারা আসুরি সম্প্রদায়ের হয়ে যায়। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वह कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है सत बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। बाबा बोलছেন যে সত শিব বাবা, সত শিব টিচার আর সত শিব গুরু, এক বাবাই আসল আমাদের পিতা, আমাদের टीचर, আমাদের गुरु। सच तो वह है ना, तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो, जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। বাবা বলছেন যত তোমরা যোগ করবে, যত দেহি অভিমানী হবে তত নিজের কল্যাণ করবে।
तो तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर हैं। बाबा आबार मने करिए दिच्छेन जे तोमराई देवी देवता धर्मेर आत्मा, तोमराई 84 जन्मेर शेषे एखन अंतिम जन्मे संगम युगे पहुँचेछो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं बच्चे, अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बाबा खूब भालो करे बोझाচ্ছেন যে যদি তোমরা খুব ভালো করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে খুব খুশিতে থাকবে। परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। किंतु আমরা কি করি, বাবাকে স্মরণ না করে আমরা सांसारिक गल्पे चले जाच्छी। तो यह याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा सब समय मने राखो जे तोमरा बाबार श्रीमते निजे राज्य स्थापन करछो। गाया भी हुआ है ऊंच ते ऊंच भगवान, उनकी है ऊंच ते ऊंच श्रीमत। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। बलছে श्रीमत की सिखाচ্ছে তোমাদেরকে सहज राजयोग। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। বা বলছেন নিজের পিতা দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জেনেছো, এবার दैवी गुण धारण करो। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। বলছে বাবার কখনো তোমরা মোকাবিলা করতে যেও না। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। বলছে অনেক বাচ্চারা নিজেকে সার্ভিসেবল ভেবে अहंकारे चले आसे। ऐसे बहुत हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। আবার বেশি অহংকার হলে কি হবে, মায়ার কাছে হেরে যায়, তখন আর সে জ্ঞানের নেশা থাকে না। तुम माताएं तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं, तुम कुमारियों को तो कितना नाम बाला करना चाहिए। बाबा बोलছেন যে कुमारी कन्याদেরকে যে তোমরা তো বাবার সেবায় লেগে खूब बाबार नाम रोशन करते पारो। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर देते हैं। बाबा बोलছেন যে এই পড়াই দ্বারা নারী লক্ষ্মী হচ্ছে, নর নারায়ণ হচ্ছে, তাও বাবার এই পড়াইয়ের প্রতি কারো নজর নেই। অথচ লৌকিক দুনিয়াতে পাই পয়সা, যেটাতে কড়ি তুল্য পড়া, हाँ तार जन्य जान कुर्बान कर दिच्छे मानुष। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो। बाबा बोलছেন कि जेटा ए दुनियाय शेष हो जाबे, खत्म हो जाबे, तो तार जन्य केन एत माथामारी करछो। और जेटा तुम्हार 21 जन्म संगे जाबे तो तार जन्य तुम्हार कोनो लगन नहीं। तो इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नुम में जाना है। बाबा बोलছেন যে পুরনো দুনিয়ার সঙ্গে দিল লাগানো মানা एकदम दोजके जावा, नरके जावा। बाप पाकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते हो। तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। बाबा एत ऊँचो टीचर और एत ऊँचो पढ़ा एत सहज सरल भाषाয় বলছেন যে বাবা বলছে যে এই জ্ঞান তো
কোনো বেদ শাস্ত্রেও নাই আর কোনো ऋषि मुनिও তোমাদেরকে কাউকে বোঝাতে পারবে না। तो यह तो बाप टीचर गुरु भी है, वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री जोग्राफी सुनाते हैं। बाबा बोलছেন যে বাইরে टीचर এটা বলতে পারে না যে আমরা তোমাদেরকে পুরো পৃথিবীর হিস্ট্রি জিওগ্রাফি শোনাচ্ছি। वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। तो बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी भी बतलाते हैं। अब यह टीचर अच्छा व वह टीचर अच्छा। बाबा बोलছেন যে যারা শাস্ত্র শোনাচ্ছে তারা ভালো ना बाबा जी तुम्हें वर्ल्डर हिस्ट्री जोग्राफी सुनाচ্ছে ये टीचर भालो। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे। स्कूले बा कलेजर पढ़ाशोना जे कराए टीचर तो तारा तुम्हें कतटुकु इनकम कराते पारबे, सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए मर जाए तो पढ़ाई ख़त्म। বলছে আজকে খুব ভালো ডিগ্রি তুমি নিয়ে আসলে আর রাস্তায় তোমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, তাহলে তো সেই ডিগ্রি তোমার পরবর্তী জন্মের সঙ্গে যাবে না, আবার পরবর্তী জন্মে ক্লাস 1 থেকে ABCD শিখতে হবে। তো বাবা বলছে এই পড়া তো তোমার 21 জন্ম সঙ্গে যাবে। यहाँ तुम यह पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगी। বাবা বলছেন ঈশ্বরীয় পড়াই তুমি যত পড়বে এটা একটুও ব্যর্থ যাবে না। हाँ, श्रीमत पर न चल, कुछ उल्टा चल पड़ते हैं या गटर में जाकर गिर पड़ते हैं तो जितना पढ़ा वह कोई चला नहीं जाता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है। बाबा बोलছেন যে পড়তে পড়তে বাবার এই জ্ঞান পড়তে পড়তে যদি শ্রীমতের উল্লঙ্ঘন কিছু হয়েছে বা বিকারে গেছো তোমরা বা কোনো মায়াবী চোট খেয়েছো তো তাও যেটুকু পড়েছো সেটুকু প্রারব্ধ পাবে, মানে পদ কমে যাবে, শাস্তি পাবো আমরা, ধর্মরাজের অনেক শাস্তি খেতে হবে, কিন্তু যেটুকু পড়েছি সেই অনুসারেই সত্যযুগে যাওয়ার অধিকারী তো হব। तो बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। যদি আমরা বিকারে যাই তাহলে কল্প কল্পান্তরের ঘাটা পড়ে যাবে। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं, उनको कभी यह ज्ञान हजम नहीं होगा, बदहाजमा हो जाएगा। বলছেন অনেকের আছে বিকারেও যায় আবার সকালবেলা চান টান করে বাবার মুরলি শুনতেও আসে। तो বলছে তারা এই জ্ঞানকে হজম করতে পারবে না, হ্যাঁ ডাইজেস্ট হবে না, বদহাজমা হয়ে যাবে। तो जो सुनेगा वह बदहाजमा हो जाएगा, फिर मुख से किसी को कह न सके कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है, खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। সে নিজেরাই জয় করতে পারছে না বিকারকে তো অন্যকে কি করে বলবে। अंदर खाएगा ना, उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय, अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। बाबा बोलছেন যদি অমৃত পান করতে করতে যদি বিষ কেউ খেয়ে নিয়েছে তাহলে 100 गुण कालो हो जावे और हड्डी गुड्डी सब भेंगे जावे। तो माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना। बोलছে তোমরা কন্যারা মাতারা सब एकजुट হয়ে বাবার সেবার জন্য তৈরি হও, তোমাদের एम ऑब्जेक्ट सामने আছে। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य एक भाषा, 100% प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं।
বাবা বলছেন সত্যযুগে এক রাজ্য এক ভাষা 100% পিউরিটি পিস প্রসপারিটি থাকবে। বাবা সেই রকম অটল অখণ্ড রাজত্বের স্থাপনা করছেন। यह है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता सुख शांति संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए। বলছে একদম ক্লিয়ার লিখে দাও যে মহাবিনাশের পরে ভারতবর্ষের প্রথম রাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ আসছেন। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता सुख शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। अच्छा है इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर ऐसे ऐसे बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। বলছে যখন তোমরা কোথাও চক্কর লাগাতে যাচ্ছ বা কোথাও ঘুরতে বেড়াতে যাচ্ছ তো সেখানেও লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র অবশ্যই নিয়ে যাও, আর সে চিত্রে যেন লেখা থাকে যে বাবা এসেন এখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম সুখ শান্তি রাজ্য স্থাপন করছেন। तो ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर और सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। बाबा बोलছেন যে তোমরা চিত্রে লিখে দাও যে ত্রিমূর্তি শিব বাবা, সত্য ত্রিমূর্তি শিব বাবা, সত্য ত্রিমূর্তি শিব টিচার, শিব বাবাই পরম টিচার, সত্য ত্রিমূর্তি শিব গুরু, বাবাই হচ্ছেন পরম গুরু। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वह टीचर कैसे हो सकता है। ज्ञान तो नहीं है ना। বলছে ত্রিমূর্তি অবশ্যই লেখো যাতে বোঝা যাবে যে ভগবান ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের দ্বারা সৃষ্টি পরিবর্তনের মহান কাজ করছেন। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की सीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। বাবা বলছেন যে টিনের সিট হয় না সেই সিটের উপরে লক্ষ্মী নারায়ণের সুন্দর সুন্দর চিত্র বানিয়ে রাখো। यह स्थापना हो रही है तो बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना, बाकी सबका विनाश करा देंगे। तो यह बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। বাবা বলছেন যে ব্রাহ্মণ পরিবারের মধ্যে একমত না হলে কি হয়, তখন মন খারাপ হয়ে যায় সবার। यह तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है, बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है, सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। বাবা বলছেন যে মায়া এমন সবার বুদ্ধি ঘুরিয়ে রেখেছে যে বাবা থেকে সবাই মুখ ফিরিয়ে আছে, বাবাকে জানেই না। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं।
बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। বাবা বলছেন আমি তোমাদের উপরে এত উপকার করছি আর তোমরা আমাকে কি বলছো। সর্বব্যাপী বলে দেওয়া হচ্ছে, কুকুর বিড়াল ছাগল সবার মধ্যে ভগবান আছে, হ্যাঁ ভগবানই পাপ করাছে, ভগবানই পুণ্য করাছে, তো বাবার নামে এত গ্লানি এত নিন্দা। তো বাবা বলছে আমি তোমাদের উপরে এত উপকার করছি আর তোমরা আমার উপরে অপকার করছো। भारत का हाल देखो क्या है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है, यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। बाबा बोलছেন যে সবসময় নারায়ণ হওয়ার নেশা রাখো, এটা না যে আমরা রাম সীতা হব, মানে চন্দ্রবংশী पद पावर लक्ष्य राखो ना सूर्यवंशी पद पावर लक्ष्य राखो। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो, हिम्मत दिखानी चाहिए ना, पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए, कोई से दिल लगाई और मरे। বলছে পূর্ণ দুনিয়ার সঙ্গে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তোমার দিল লাগলো মানা তোমাকে মরতে হবে। जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा, बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े। বাবা বলছে যে বাবা তোমাকে স্বর্গের সুখ দিচ্ছে, তারপরে তুমি কেন নরকে আছো। बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था, अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। এখন তো आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं, कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते, मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। বলছে মানুষ হয়ে নিজের ধর্মকে ভুলে গেছে, হিন্দু कोई धर्म थोड़े ही है। বাবা বলছেন জাপানে যদি কেউ থাকে তাকে তার জন্য তাকে জাপানি ধর্মের লোক বলা হবে, বা চায়নাতে যদি কেউ থাকে তাকে চীনি ধর্মের লোক বলা হবে। তো ভারতবর্ষকে নাম দিল হিন্দুস্তান, আর হিন্দুস্তানে যারা ভারতীয়রা আছে তাদেরকে বলে দিল হিন্দু, আর এরা পুজো পাঠ করছে তো বলো হিন্দুদের এটা ধর্ম। তো বাবা বলছে যে এইভাবে কোনো ধর্ম হয় না। किसने स्थापन किया यह भी नहीं जानते, तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ, सबको वापस ले जाने, बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे कहेंगे ना, বলছে দুনিয়া এখন পুরো কিচড়া হয়ে আছে, তো এখন আর এই দুনিয়া থাকার মতন নেই, এবার বুদ্ধিকে উপরাম করো, গুটিয়ে নাও, চলো নিজের বাড়ি চলো। বাবা বলছেন तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती। बाबा बोलছেন যে হে ভারতবাসী তোমরাই তো বিশ্বের মালিক ছিলে আর এখন তোমরা আজ এই দেশ কাল ওই দেশ ধাক্কা খাচ্ছ, তো বলছে লজ্জা আসছে না। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबर वार तो है ना, बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा चढ़ता ही नहीं है। बाबा बोलছেন যে এক একটা বাচ্চার এক এক রকম মনের দশা থাকে, মনে হচ্ছে কোনো অন্য চিন্তনে আছে। তো বলছে যে খুশি বাবা দেখতে চাই বাচ্চাদের মধ্যে সে খুশি থাকে না। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। बाबा বলছেন এই সাধু आदिকে আমি उद्धार করছি। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। এই সাধু সন্ন্যাসীরা না নিজেকে মুক্তি দিতে পারে না অন্যকে মুক্তি দিতে পারে। सच्चा गुरु तो एक ही सतगुरु है जो संगम पर आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। বলছেন আমি আসছি
এই সঙ্গম যুগে কল্পের সন্ধিক্ষণে একটা কল্প শেষ হচ্ছে আর একটা কল্প আরম্ভ হচ্ছে। তো কলিযুগের শেষ আর সত্যযুগের প্রারম্ভে আমি আসছি, এটাকে যুগে যুগে বলা হয়েছে, মানে দুটো कल्पेर माझखाने संधिक्षणे। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते। अरे तुम बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ, बाकी और क्या करूँगा। मानुष भावे ना जे भगवान तो सर्वशक्तिमान, उनी मरा मानुष क्यों জীবিত করতে পারেন। তো বাবা বলছে তোমরা আমাকে ডেকেছো পতিতকে পাবন বানানোর জন্যে, আমি ওই মরা মানুষকে জীবিত করা, তোমার ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক করে দেওয়া, এসব কাজের জন্যে আমি আসিনি। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, मेरा काम ही है नरक को स्वर्ग बनाना। বলছে যদি তুমি এসব চাও যে তোমার ব্যবসা বাণিজ্য ভালো হবে বা অন্য তুমি কিছু ভালো কিছু চাইছো, তো বাবা বলছে এই দুনিয়াতে ঋদ্ধি সিদ্ধি অনেক আছে, আমার কাজ হচ্ছে কলিযুগকে স্বর্গ বানানো। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, यह तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए हैं, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए। बाबा अरविंद घोष के मने करছেন যে উনি তো এই 200-300 বছর হলো যে উনি এসেছেন, তো কত ওনার আশ্রম হয়ে গেছে চারিদিকে। वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी है, वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। यह अंतिम जन्म पावन बनो, सत्युग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। বলছেন বুড়ি বুড়ি মাতাদেরকেও তোমরা তৈরি করো যাতে তারা প্রদর্শনীতে কিছু বোঝাতে পারে। कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो है नहीं। तो बाप कहते अब तुम मुझे याद करो। বলছেন যখন তুমি শুধু আমাকে স্মরণ করো तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। বলছে বুড়ি বুড়ি মাতারা যদি প্রদর্শনী বোঝাবে তাহলে সবাই খুব খুশি হবে। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है, बोलना चाहिए यह लिखत ज़रूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक पने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ, तो तुम्हें भी औरों पर रहमदिल बनना चाहिए। বলছেন আমি তোমাকে এত সুন্দর লক্ষ্মী নারায়ণ বানাচ্ছি, তো তোমাকেও অন্যের প্রতি রহমদিল হওয়া উচিত। तो जब अपना कल्याण तब दूसरे का भी कर सकेंगे। যখন আমরা নিজের কল্যাণ করব তবেই আমরা অন্যেরও কল্যাণ করতে পারবো। तो बूढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ, जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बूढ़ियों को भेजो तो झट आ जाएं। বাবা আজকে বুড়ি মাতাদের পিছনে পড়েছেন। বাবা বলছেন যে বুড়ি মাতাদেরকে এত সুন্দর তৈরি করো, একটা ভালো গ্রুপ বানাও তাদের, যে বাবা তাদেরকে ডাকবে যে মাতাদেরকে পাঠাও, তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে সেবার জন্য চলে যাবে। তো বাবা বলছেন जो करेगा सो पाएगा, যে করবে সে পাবে। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम यह शरीर छोड़ जाए विश्व के मालिक बनेंगे, तो जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे।
देखो लिफाफे पर छपा है, 1 रिलीजन 1 डिटी किंगडम 1 लैंग्वेज, वह जल्दी स्थापन होगी। বলছে যে বাবা ওই সময় কোনো প্রিন্টিং প্রেসে এরকম ছাপিয়েছিলেন যে খামে লেখা আছে 1 রিলিজন 1 ডিটি 1 কিংডম 1 ল্যাঙ্গুয়েজ, तो एक जाति एक धर्म एक भाषा एक ही राजधानी। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েंट, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं इसलिए कभी रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। বলছেন নিজেদের মধ্যে বা বাবার সঙ্গে কখনো রুষ্ট হও না, বাবা তোমাদেরকে আনন্দ দিতে এসেছেন, তো কখনো তোমরা নিজেরা দুঃখী হও না, অসন্তুষ্ট হও না এবং বাবার কখনো মোকাবিলা করো না। তারপরে 2 নম্বর পয়েंट, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप सत टीचर और सत गुरु के साथ सच्चा रहना है। বলছে পুরনো দুনিয়ার সঙ্গে একদম দিল লাগাও না, সৎ বাবা সৎ টিচার আর সৎ গুরুর সঙ্গে সাচ্চা হয়ে থাকো। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। एक बाबार श्रीमते देही अभिमानी हो। আজকের वरदान, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। বাবা বলছেন যে সবসময় ভাবো যে আমি সঙ্গম যুগের আদি রত্ন, মানে সঙ্গম যুগ তো আদি যুগ, সত্যযুগের আগের যুগ। ব্রহ্মা বাবা আদি দেব, তো ব্রহ্মা বাবার সন্তান আমরা, ব্রহ্মা কুমার কুমারী আমরাও আদি রত্ন। তো আমরা এখন সঙ্গম যুগে বাপ দাদার সঙ্গে পার্ট প্লে করছি। তো এই সমানে সবসময় থাকো, নিজের জীবনের মূল্যকে ভালো করে দেখো, তাহলে তোমার সমর্থ চাল চলন সব কিছু সুন্দর হয়ে যাবে, অর্থাৎ সব কিছুর মধ্যে समर्थी चले आसबे। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है ऐसे ब्रह्म कुमार कुमारियाँ भी आदि रतन हैं। বলছেন যেমন ব্রহ্মা বাবা আদি দেব, এরকম ব্রহ্মা কুমার কুমারিয়া সবাই आदि रत्न। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। বলছে आदि रत्न भावले तुम्हें निजेर जीवनेर मूल्य के जानते पारबे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। बाबा बोलছেন आदि रत्न माने তোমরা প্রভু রত্ন ঈশ্বরীয় রত্ন হচ্ছ, তো তোমাদের কত মূল্য হয়ে গেল, কত মূল্যবান হয়ে গেলে তোমরা। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। तो বলছে सब समय নিজেকে आदि देवेर সন্তান मास्टर आदि देव आदि रत्न ভেবে কাজ করো, তো প্রত্যেক কাজ তোমার সমর্থ হবে। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता, কোনোটাই ব্যর্থ যাবে না। আজকের স্লোগান, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। বলছে জ্ঞানী তো আত্মা সেই যে ধোকা খাওয়ার আগেই পরিস্থিতি বা মানুষকে ভালো করে যাচাই করে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে পারে, সেই হচ্ছে জ্ঞানী তো
आत्मा। ओम शांति।